Hello viewers and my dear students, I Dr. Megha Chaudhary welcome you all in my surgery online class. Last time we discussed about the basal cell carcinoma, also called rodent ulcer. It is a type of skin cancer. Today we will discuss the skin cancer in detail and its other types, that is second is squamous cell carcinoma and third is melanoma. So in basal cell carcinoma there was proliferation and growth of basal cells. Basal cells kahan ke? Epidermis, that is the outermost layer. As we have already discussed, the skin is comprised of three layers: epidermis, dermis, then hypodermis. The middle one, that is dermis, it consists of hair follicles, blood vessels and nerves. The uppermost layer, the outermost layer, that is epidermis. इसके अंदर जो नीचे की लेयर है एपिडर्मिस में, दैट इज स्ट्रेटम बेसिले, वहां पे जो सेल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. एंड उन बेसल सेल्स का जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है. बट अगर केराटिनोसाइट्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है देन दिस विल प्रोड्यूस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. एंड मेलेनोसाइट्स अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं then this will form melanoma, that is the third type of skin cancer. Here I am trying to show and make you understand with this rough diagram. Consider it is a skin, ये पूरी skin है. Skin में first layer that is epidermis, उसके नीचे dermis which contains hair follicles, blood vessels and nerves. Dermis के नीचे hypodermis, hypodermis anchors with the tissue. तो ये ऊपर जो है that is skin. नाउ स्किन में वी हैव टू अंडरस्टैंड एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में जो बेसल लेयर है, दिस इज बेसल लेयर. यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स हैं, दिस आर कॉल्ड बेसल सेल्स. बेसल स्ट्रेटम लेयर है, वहाँ पे ये क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स हैं, बेसल सेल्स. दिस आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग केराटिनोसाइट्स एंड मेलेनोसाइट्स. अगर बेसल सेल्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो बेसल सेल कार्सिनोमा होगा. अगर केराटिनोसाइट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो केराटिनोसाइट्स विल मेक अ ट्यूमर कॉल्ड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर. एंड इफ मेलानोसाइट्स आर प्रोड्यूसिंग मोर, अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मेलानोसाइट्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा मेलेनिन बनेगा, दिस आर मेलानोसाइट्स, तो मेलानोमा दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ स्किन कैंसर वो होगा. पैथोलॉजी सब में एक ही है, जो ईटियोलॉजी दैट इज द सन रेज, यूवी रेज, सन रेज और वाइट स्किन पीपल, और अगर आर्सेनिक कंपाउंड किसी के टच में आ गया देन दोज पीपल आर एट हाई रिस्क. तो सन रेज इज द फर्स्ट. सन रेज जब पड़ती हैं स्किन में दैट सेंड अ मैसेज टू द मेलेनोसाइट्स. मेलेनोसाइट्स विल प्रोड्यूस मोर मेलानिन. मेलानिन एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन बिकॉज इट चेक्स द सन रेज. अगर सन रेज रिमेन अनचेक्ड तो this can cause mutation. Mutation where? In the genetic code, in the DNA structure of the cell. Genetic code जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगा एंड ट्यूमर प्रोडक्शन होगा. बेनाइन होगा तो इट्स ओके, बट इफ इट स्प्रेड्स टू अदर साइट्स, मेटास्टेसिस हो गया तो देन इट forms malignant tumors that are cancers. So if tumor travel from primitive site and establishes secondary site, then that tumors are termed as cancers. Why this uncontrolled cell division is going on? Because there is a DNA mutation. Genetic code is disturbed. Genetic code is disturbed, DNA mutation हो गया तो uncontrolled cell division हो रहा है. किसका? Skin cells का. Why? Because due to harmful UV radiations of sun. So there is a DNA mutation. तो pronto-oncogenes that are accelerator is causing promotion of cell division. But जो tumor suppressor genes हैं that are break, वो break नहीं लग रहा है, stop नहीं हो रहा, inhibition नहीं हो रहा cell division का. There is loss of inhibition of cell division. So continuous proliferation of cells is occurring. Now this harmful sun rays or infrared rays sends the message to the melanocytes to produce more melanin. Melanin acts as a sunscreen. This scatters the sun rays. But if sun rays remain unchecked तो DNA mutation होगा. Now
today we'll discuss more about the second type of skin cancer, that is squamous cell carcinoma, that is the second most common cancer. इसमें दो phases हैं. The first is actinic keratosis, प्री कैंसरस लेसन, जो एपिडर्मिस में है, जो अभी डीपर तक नहीं पहुंचा, दैट इज द अर्ली स्टेज, प्री कैंसरस लेसन. इसको बॉमेन्स डिजीज भी कहते हैं. इसमें लेजन्स प्रोड्यूस होते हैं दैट कुड बी रेज्ड और फ्लैट. ईचिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ड्राई एंड स्केली पैचेस हो जाते हैं, लेजन्स हो जाते हैं. सैंड पेपर लाइक पैचेस commonly form on lips, face, scalp, arms, ears, back of hands, जहाँ पे सनरेज पड़ रही हैं. अब जो एक्टिनिक केरेटोसिस है, जब वो डीपर लेयर तक पहुंचता है एपिडर्मिस में और फिर डर्मिस तक इन्वेट करता है, देन हाइपोडर्मिस तक चला जाता है एंड मेटास्टेसिस होने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. दैट इज मोर इन्वेसिव, क्योंकि ये डीपर लेयर्स तक इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेसिव हो रहा है, अंदर डीप जा रहा है, मेटास्टेसिस कर रहा है. तब ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड हो जाता है, इसमें रेड एलिवेशंस हो जाते हैं एंड स्केली प्लैक दिखता है, ड्राई होने लग जाता है. तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड दिखता है एंड वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द स्किन. Now definition of basal cell carcinoma, it is malignant proliferation of basal cells of epidermis, whereas squamous cell carcinoma is malignant proliferation of keratinocytes. So here is the difference of both. जो squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma में जो basic difference है, that कि basal cell carcinoma में involvement basal cells का है and squamous cell carcinoma में जो proliferation हो रहा है वो keratinocytes का. Now in examination जो basal cell carcinoma है वो नोड्यूलो अल्सरेटिव दिखेगी. स्किन कलर्ड पैप्यूल नोड्यूल विल रोल ट्रांसलूसेंट पर्ली एज, जो बॉर्डर है वो पर्ली दिखेगा. बट जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वहाँ पे वेरिएबल अपीयरेंस होगा, अल्सरेटेड, हाइपर कैराटोटिक, क्रस्टेड और स्केलिंग, नॉन हीलिंग पैप्यूल, नोड्यूल ऑफन ऑन सन एक्सपोज्ड एरियाज. ऑन टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम पेशेंट पता चलेगा कि बेसल सेल कार्सिनोमा इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव स्किन लेसन, whereas squamous cell carcinoma is more rapid enlargement. Then location, basal cell carcinoma will occur mostly on face, scalp, ears and trunk, whereas squamous cell carcinoma will occur on face, ears, scalp, forearms and also on dorsum of hands. जो अल्सर दिखेंगे वो नॉन हीलिंग अल्सर्स एंड वहाँ पे रिकरेंट ब्लीडिंग होगी. पेशेंट में ऑल्सो कंप्लेन ऑफ ईचिंग ऑन दैट अल्सर्स और लेसन्स. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्किन कैंसर्स. जो बेसल सेल कार्सिनोमा वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, वहाँ पे पर्ली एज है. जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उसमें दो फेज हैं. फर्स्ट इज एक्टिनिक केराटोसिस, जो कि सुपरफिशियल अभी इन्वेड नहीं की, एंड जब इन्वेड कर लेगी मेटास्टेसिस हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बट पहले उसको कहेंगे बॉमेन डिसीज. नाउ बेसल सेल कार्सिनोमा में शीट्स दिखती हैं, आइलैंड्स दिखते हैं एपिथेलियल सेल्स के हिस्टोलॉजी में, एंड जो पेरिफेरली सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट इतना प्रॉपर है, देयर इज नो गैप बिटवीन दिस सेल्स. So this arrangement is called palisadal arrangement of epithelial cells. एंड बीच में शीट्स एंड आइलैंड्स दिखेंगे एपिथेलियल सेल्स के. जो एज है वो पर्ली दिखेगी, रेस्ड दिखेगी, पर्ल्स लाइक अपीयरेंस दिखेंगे सर्कमफेरेंस में. नाउ वी विल स्टडी द थर्ड टाइप, दैट इज द मेलानोमा. दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ स्किन कैंसर. इट इज द मोस्ट एग्रेसिव एंड इतना जल्दी मेटास्टेसिस होता है, सो क्विकली एंड रैपिडली इट मेटास्टेसिस इनटू द डीपर लेयर्स, डर्मिस तक चला जाएगा. मेलानोसाइटिक नीवस बनता है, दैट आर द मोल्स. सबसे पहले दैट इज द प्री कैंसरस स्टेज, जहाँ पे रिस्क ऑफ बिकमिंग अ मेलानोमा हो जाता है कि हाँ अब ये मोल्स बन गए हैं तो अब ये मेलानोमा कैंसर भी बन जाएगा. जो ट्यूमर सेल्स हैं उनका लार्ज न्यूक्लाई होगा एंड जो मेलानिन है वो इतने अलग अलग तरह के कलर्स बनाएगा
तो इस मेलानोमा में अभी ये पिक्चर में यू कैन सी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यू कैन सी हियर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेलानिन ऑफ डिफरेंट रेंजेस. देयर इज वॉरेनसम साइन. ABCD से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. A फ्रॉम असिमेट्रिकल, B से बॉर्डर इरेगुलर होगा, C से कलर डिफरेंट कलर्स दिखेंगे पिगमेंटेड एरिया में, एंड डायमीटर इज लार्जर देन 6 mm इन डायमीटर. दिस मोल्स कैन बी फ्लैट और रेज्ड, एलिवेटेड, एंड जो डेप्थ है, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा मेटास्टेसिस होगा. तो डेप्थ डिसाइड करता है, अगर ये जितना ज़्यादा इन्वेसिव होगा उतना ज़्यादा इसका मेटास्टेसिस होगा मेलानोमा का. नाउ कैंसर्स ऑफ द इंटिग्योमेट्री सिस्टम, इसमें तीनों टाइप्स के हैं. बेसल सेल कार्सिनोमा arises from stratum basilae, most common type and least malignant. Second is squamous cell carcinoma, that is due to the proliferation of keratinocytes and arises from stratum spisosum. Then malignant melanoma, that is the third, which is most deadly of skin cancers and cancer of melanocytes, metastasis rapidly to lymph nodes and blood vessels. देन इन्वेस्टिगेशन में बायोप्सी एंड अल्ट्रासाउंड कराएंगे टू फाइंड आउट कितनी डेप्थ तक है ये ट्यूमर्स. ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी है, क्रायोथेरेपी है, फोटोडायनामिक थेरेपी जिसमें लाइट के थ्रू डिस्ट्रक्शन कराएंगे सेल्स का, ट्यूमर्स का, एंड रेडिएशन, देन कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. प्री कैंसरस सेल्स जो है एक्टिनिक केराटोसिस, अगर उस स्टेज पे ट्रीटमेंट हो जाए तो आगे मेटास्टेसिस नहीं होता है. देयर इज ऑल्सो मोर सर्जरी, that is excision and then inspecting the excised skin using a microscope. This requires stitching up the wound. Then lymph node surgery removes a piece of the lymph node, uses general anesthesia. Cryosurgery is freezing of the spot using liquid nitrogen.